Good morning, friends. My name is Advocate Grijesh Gupta, and I am doing the labor consulting and litigations in the various topics of HR, labor reform, litigations from last 20 years. And this is my first video on labor reform. And today I'm going to talk about the most burning issue across the industry nowadays, and this is wage deficit. Dear friends, as you all know, before the enactment of these all four labor codes, there were 13 wage definitions. But now, since these all four labor codes, Code on Wages, Social Security, OHSW, and IR Code, these four labor codes have been implemented last year on 21st November 2025. So now, the most burning issue how to implement the wage definition. So now nowadays I am frequently getting calls from various HR department, consultant, even payroll divisions. So the most burning issue how to implement this wage definition and how to be a compliant. If you want to see, or if you, I request all of you to once you go through the Bare Act and you just go through the plain reading of wage definition under Section 2Y of Code on Wages 2009. But the most important, because this is the Bare Act and this is the, we have right now in front of me, this is the Code on Wages 2019, where you can see in Section 2Y, it is clearly written what will be constitute wages. But the burning issue or the question comes how to interpret the wage, because earlier it was very clear. The wage definition for PF was different, for ESIC it was gross, for gratuity it was basic. But since these four labor codes have been implemented on 21st, and however, state center has already been notified their rules, but we are waiting for the state rules. But let me clear all of you, dear friends, don't, the wage definition has nothing to do with the state rules. So if you are waiting to implement the wage definition after coming the state rules, this is the wrong perception, because state government is not going to change anything in the wage definition, because the appropriate authority for wage definition is the central government. तो जो वेज डेफिनेशन है वो एज इट इज ही रहेगी. आपको इसको इम्प्लीमेंट भी 21 नवंबर 2025 से करना था. हाउएवर 21 नवंबर को जब ये नोटिफाई हुए तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि वेदर अभी ये इम्प्लीमेंट करें नहीं करें, कैसे होगा. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कर भी लिया है, कुछ लोग अंडर ट्रांजिशन कर रहे हैं. सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, प्लीज इम्प्लीमेंट द कोड ऑन वेजेस डेफिनेशन. जो वेज की डेफिनेशन है आप उनको इम्प्लीमेंट करो, अकॉर्डिंगली यू रिस्ट्रक्चर योर सैलरी. जो सीटीसी स्ट्रक्चर है आपकी कंपनी का, इट शुड बी डुली कंप्लाइड. नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए आज का ये वीडियो है कि एक्चुअली हाउ यू विल इंटरप्रेट द वेज डेफिनेशन. तो वेज डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना कैसे करना है. सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्चुअली वेज का इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू मी क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. उससे पहले हम आपको वेज डेफिनेशन का वो पैराग्राफ पढ़ाते हैं. बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या, हाउएवर इफ यू सी द अर्लियर वेज डेफिनेशंस लाइक पीएफ में जो था वेज की डेफिनेशन, और अभी ये तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है. बट इसको बेसिकली दे मेड this wage definition same for across the labor laws under all four labor codes. So this is a good thing. Now come to the how you will interpret wage. So dear friends, wage means all remuneration. जितना भी remuneration है वो wage है, whether by way of salary, allowances or otherwise. So the first thing, this is the thumb rule, whatever you are going to pay or you are paying to the worker or employees, it is wage. Now, come to the next step.
if you if you read the definition word by word, plain reading, it says and includes. Let me narrate this once. A wage means all remuneration by way of salaries, allowances, otherwise, and express, implied, were fulfilled. We payable to a person employed in respect of employment of work done in such employment and includes. अब देखिए इसमें inclusion word आया है. So wage includes basic DA and retained. So now these are the three allowances which includes wages: basic, dearness allowance, and retaining allowance. Retaining allowance like the allowances being given to retain the employee, like sugar factories, या अर्लियर पहले क्या था, जैसे रबर इंडस्ट्री थी, रबर भी सीजनल में आती थी, तो वो तो खैर इस बार रबर इंडस्ट्री को उन्होंने सीजनल से निकाल दिया है, तो सीजनल जैसा अभी कुछ रहा नहीं है. बट रिटेनिंग अलाउंस इसका पर्पज होता था, जैसे शुगर फैक्ट्रीज में होता था कि इम्प्लॉइज 6 महीने फैक्ट्री काम करती थी, 6 महीने नहीं करती थी, तो उसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग अलाउंस देते थे. नाउ कम टू द फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट. तो वेज मीन्स बेसिक डी एंड रिटेनिंग अलाउंस. बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज नॉट इट. देखिए इसमें इन्होंने एक्सक्लूजन दिया है, एंड इफ यू रीड बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट. फर्स्ट इज द बोनस, दे आर टॉकिंग द मंथली स्टैट्यूटरी बोनस. बी द वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन. सी एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, इट मीन्स एम्प्लॉयर पीएफ. डी the conveyance allowance means transport allowance. E any sum paid to employee or to defray special expenses. इसके बाद में आता है F HRA. G remuneration under any award or settlement by the court. H is any overtime. I any commission payable to the employee. So and the proviso इसके बाद जो आपको देखोगे एक्सक्लूजन में, इट सेज द सम ऑफ ए टू आई कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे. हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप किसी वर्कर को 100 रुपए, अब देखिए गवर्नमेंट का कहना है कि 100 रुपए आप दे रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले एट फर्स्ट इंस्टेंस 100 का 100 वेज है. वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और अदरवाइज. तो ये तो हो गया आपका 100 रुपए मंथली अगर आप किसी वर्कर को दे रहे हो, दिस इज एन एग्जांपल. तो ये आपका पूरा वेज हो गया. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पर क्या है, उन्होंने कहा कि वेज इंक्लूड्स बेसिक डी रिटेनिंग अलाउंस. तो ठीक है, आपने उसमें से बेसिक कर देते हैं, आप बेसिक कर दो 50. अब आते हैं एक्सक्लूजन. अगर आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में पॉलिसी बेस्ड जेन्युइन अलाउंसेस हैं और वो ए टू आई में फॉल करते हैं, जैसे आप एचआरए देते हो, आपके पास एचआरए की पॉलिसी, आपके पास कन्वेंस की पॉलिसी है. डीफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इधर, कन्वेंस के जस्ट नीचे ई पार्ट. डीफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस क्या होता है, वो होता है कि इन केस अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को वो अलाउंसेस देते हो दैट इज बीइंग यूज्ड टू any expenses which incurred by the employee while discharging the job. जैसे आप उसको वॉशिंग अलाउंस देते हो, वो मड में काम कर रहा है, या वो पता चल रहा है कि वो ऐसे सेंटर में काम कर रहा है जहां पर उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है, तो आप उसको वॉशिंग अलाउंस, उन वर्करों के लिए एक पॉलिसी बना दो वॉशिंग अलाउंस, ठीक है. या वो वर्कर्स ऐसे हैं कुछ पेंट डिवीजन में काम कर रहे हैं जहां पे कपड़े गंदे होने ही होने हैं, ठीक है, बॉयलर में काम कर रहे हैं, या आपका जैसे सपोज आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं और आपने एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बिकॉज सपोज मार्केटिंग जीएम ज्वाइन किया है, बट ही नीड टू विजिट इंडस्ट्री, वो डेली तो उसको कार का फ्यूल का रिइंबर्समेंट, फ्यूल का खर्चा देना पड़ेगा. तो दिस इज कॉल्ड डीफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस. तो इसमें आप अलाउंसेस बना सकते हो, पॉलिसियां बना सकते हो, बट मेक श्योर ए टू आई कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन. तो अगर 100 रुपए का एग्जाम्पल है तो 50 रुपए के तो आप अलाउंसेस दे दो, लेकिन अगर 50 से जैसे ही ऊपर हुआ आपका अलाउंसेस, और ध्यान रखिएगा इस 50 रुपए में एम्प्लॉयर पीएफ भी इंक्लूड है. तो अगर आपको 100 रुपए आप फिक्स सीटीसी है किसी की, तो आप उसमें 50 रुपीज 50
तो आपको क्या करना होगा कि उसका जो एक्सक्लूजन है, इट कैन नॉट बी, एक्सक्लूजन मीन्स अलाउंसेस प्लस एम्प्लॉयर पीएफ शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन। तो 100 रुपए में मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, अगर पीएफ 1800 रुपए काटते हो तो आप उसका 52-53% रखो बेसिक, बाकी का जो आपका बचेगा 47% वो रखोगे अलाउंसेस, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर पीएफ भी एक्सक्लूजन में ऐड होता है, तो वहां पर 1-2% में वो एड अप हो जाए। तो ऐसे आपका इंक्लूड, बिकॉज ये मैं क्यों बता रहा, देखिए अगर आपने 100 रुपए को 50-50 में कर दिया, 50 बेसिक को 50 अलाउंसेस, एचआरए कन्वेंस दे दिया 25-25 हजार, तो दिक्कत क्या आएगी कि एम्प्लॉयर पीएफ भी एक्सक्लूजन में है। तो जब आप 1800 रुपए जब आप उसका पीएफ काटोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा 51,800, तो वहां आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो याद रखिए कि जब आप सैलरी को रिस्ट्रक्चर करो तो अलाउंसेस के साथ एम्प्लॉयर पीएफ को भी इंक्लूड करना है। इसके बाद ऐसे करके दूसरी चीज, जितने भी अलाउंसेस हैं प्लीज मेक श्योर ऑल द अलाउंसेस मस्ट बी अ पॉलिसी बेस्ड जेन्युइन, उनकी एक फाइल होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, सो दैट आप कोर्ट ऑफ लॉ और अथॉरिटी को कभी इंस्पेक्शन हो या जरूरत पड़े तो आप बता सकते हो कि भाई हमने वॉशिंग अलाउंसेस 50 वर्करों को दिए क्योंकि वो मड में काम करते हैं, वो बॉयलर में काम करते हैं, आपने ड्रेस अलाउंस इनको दिए क्योंकि दे मेंटेन द ड्रेसेस एंड ऑल दैट, या आपने किसी को डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस दिया है इन केस आपने 4-5 वर्करों को सपोज आपने उनके लिए ट्रेनिंग कराई है, बेसिकली वो ट्रेनिंग करके आए, फिर किसी एक्सपर्ट मशीन पे काम करते हैं जिसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, एग्जाम क्वालिफाई किया है, दे आर परफॉर्मिंग सम स्पेशल फंक्शन विच ऑर्डिनरी वर्कर कैन नॉट। तो उस केस में आप उन पर्टिकुलर 10 लोगों को स्पेशल फंक्शन का अलाउंस दे सकते हो, स्पेशल अलाउंस दे सकते हो, बट इट शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड, मेंटेन्ड इन योर पॉलिसी। तो इस टाइप से आपको सीटीसी को रिस्ट्रक्चर करना है। इसके बाद में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि सर सीटीसी रिस्ट्रक्चरिंग अभी क्यों करना, अभी तो स्टेट रूल्स ही नहीं आए, बट प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल एंड क्लियर। वेज डेफिनेशन 21 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट हो चुकी है, सो देयर इज नो डाउट, जब सेंट्रल ने एक्ट को नोटिफाई कर दिया है, देन व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, there is no formality pending from any authority or appropriate government। उनका काम होता है कि गजट में आपका एक्ट नोटिफाई हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद फर्दर कोई इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको सर्कुलर नहीं आएगा पीएफईएसआईसी की या वेज की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करो। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 21 नवंबर को तो ये एक्ट आए थे, लेकिन जो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी फरवरी में हमारे बंदे छोड़ के गए और उनको ग्रेजुटी हमने बेसिक के हिसाब से दे दी, तो दिस इज नॉन कंप्लायंस। अब उसमें आप ये कर सकते हो कि उनकी दोबारा से कैलकुलेट करो, तो डिफरेंस अमाउंट वो पे आउट करके बुक करो, बट देयर इज नो शॉर्टकट। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट यू टू इंप्लीमेंट एज सुन एज पॉसिबल, because if you are waiting for express notification from appropriate government, whether चाहे पीएफ से, ईएसआईसी से, ग्रेजुटी से, कि आप उसको करो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या आ भी जाए बट उसकी कोई वो, इट्स नॉट मैंडेटरी बाय लॉ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, उसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। इन केस अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, सो दैट हम उस पर आपको आंसर कर पाएंगे। और इसी के साथ हम इसको बेसिकली स्मॉल छोटा सा वीडियो था रिस्ट्रक्चरिंग पर, आपको रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करने के टाइम पर क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दिया है कि भाई जो एक्ट में लिखा है आपको उसी के हिसाब से चलना है, और इस डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस में आप अपने अलाउंस बना सकते। थैंक यू। Thank you, Vijay sir, for wonderful knowledge sharing on the code and wages. So I request everyone, if you have any question, any query, please comment in the chat box and we definitely reach back to you. You can share your contact number or email address. We will definitely connect back to you to resolve your query. Stay tuned to us. We will share the further another videos on the panel discussion related to the code on wages and labor codes. Thank you. Thank you very much.